Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine at home. So let's start today's class. Today I will continue chapter 4, operating a computer system. So in the previous class and the previous video also I explained you about how to operate a computer system. So we'll read about some steps that we should follow while opening computer. So again we will revise it quickly. First we have to switch on the main power supply, as you all can see in the first picture, and then we will switch on the UPS button. If the electricity goes off, the UPS makes the computer work. So the UPS, it works like the inverter for computer. It saves electricity for computer. So all of a sudden, if electricity gone while working with computer, so the UPS provide electricity to computer and your computer can work for some time. It depends on how much your UPS is charged. Okay, third step is to switch on the supply button of the CPU. You all knows that CPU is the very important part of computer. It is also called the brain of computer, है ना? So without using CPU we cannot use computer, we cannot start computer even. Okay, so first we will switch on the main power supply, then we will switch on the UPS, and then we will switch on the CPU. As you will open CPU, so the opening process of computer will start, and at the last you have to open the monitor. अगर आपने मॉनिटर का पावर बटन ऑफ किया हुआ है तो आपको वो भी ओपन करना पड़ेगा ताकि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाई दे सके. ओके, so as you switch on the monitor, so after some time you can see the first screen on the monitor which is called desktop. Okay, so after opening computer जो first window हमें दिखाई देती है, that window is called desktop. Okay, so and this window that you can see, it contains many small pictures, and these pictures are called icons. Okay, so one thing I want to tell you that when you start CPU, so what happens, computer में ऐसा क्या होता है जो start हो जाता है ना? हम desktop कैसे देख पाते हैं? So you need to know about the operating system here. क्या operating system is the main program, is the main software on which we work while using computer. जब आप computer को actually use कर रहे होते हैं तो जो भी आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, या जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, you are using mouse and all the devices, you are giving input, you are getting output, आप drawing कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द सपोर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज़ विंडोज़. हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? वी यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. कहीं पर आपको विंडोज़ 7 मिलेगा, कहीं पर विंडोज़ 8 मिलेगा, कहीं पर विंडोज़ 10 मिलेगा, ठीक है? तो दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में भी जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड फ़ोन को बोलते हैं ना आप लोग, तो एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड मीन्स दे आर गिविंग अस एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट विंडो दैट वी कैन सी इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप, एंड द डेस्कटॉप होल्ड्स मैनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन्स. जो आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं, दोज आर कॉल्ड आइकन्स. सो दैट वॉज द पार्ट विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट. नेक्स्ट इज okay, you can never view only one thing when you peep through through your bedroom window. No, you can see different views from your window. In the same way, you can open and view many programs in Windows like Paint, movies, music and games. So what they are saying कि whenever you see outside the window from your bedroom or from your home, so you observe so many things, है ना? Yeah, they are talking about window ना. So like that window, in our Windows operating system also we can see different programs. At the same time you can open, at the same time you can play music,
आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं एंड यू कैन मेक ड्राइंग वाइल प्लेइंग म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनते वक्त आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। सो आपके सिस्टम पर एक विंडोज़ पर एक साथ कई सारे टास्क हम कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ ओके सिस्टम इज़ ओपनड नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अभी आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सपोज़ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, या सपोज़ यू वांट टू टाइप समथिंग, आपको कुछ भी टाइप करना है, तो यू हैव टू ओपन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ यू विल बी डूइंग दैट, कैसे करेंगे हम। सो सपोज़ यू वांट टू ओपन वर्डपैड फॉर टाइपिंग एनीथिंग, ठीक है। So what you have to do, you will click on the start button first, and where you will find the start button, you will find the start button in the task bar at the bottom of the desktop। जो desktop के bottom में जो सबसे यहाँ पर ये होता है task bar, there you will find the start button। It is also called the Windows button। Okay, so when you will click on that Windows button, so you will get a list of programs की एक लंबी सी list आपके सामने open हो जाएगी, from which you have to click on all programs and accessories and then you will open WordPad, ठीक है। See, this option may be different, like अगर आप Windows 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको all program का option नहीं आएगा। In place of all programs you will find all apps option, आपको all apps का option रहेगा। From that you can choose the WordPad, okay। Second way is, अगर आपको WordPad नहीं मिल रहा है तो you can type the word in the search box ऑन द टास्क बार। आप टास्क बार में सर्च बॉक्स गिवन होता है, उस सर्च बॉक्स में आप वर्डपैड टाइप करेंगे। एज यू विल टाइप वर्डपैड, तो वर्डपैड का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा सर्च रिजल्ट में, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ओपन वर्डपैड, ओके। एंड द वर्डपैड विंडो विल अपीयर एंड यू कैन स्टार्ट टाइपिंग ऑन इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग द विंडो। मीन्स विंडो का साइज़ अगर आपको चेंज करना है। सी बेटा, विंडो एंड विंडोज़, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़ means we are talking about operating system, and when we are talking about window only, window, so we are talking about the application जो हमने ओपन की हुई है। लाइक आपने वर्डपैड खोला हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्डपैड विंडो, ओके। Suppose you want to resize it, so you can change the size of your window. Look at the control button at the top right corner of the title bar. Here you all can see 3 buttons are there. Minimize, maximize and close button you will find. Click on the middle button which is called the restore down. The WordPad window will become smaller in size, है ना। So if you will click on this button, so your वर्डपैड विंडो विल बिकम स्मॉलर इन साइज, उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। एंड इफ़ यू विल क्लिक इट ऑन अगेन, तो ये अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू विल क्लिक ऑन द सेंटर बटन, अगर जो जहाँ मैक्सिमाइज़ लिखा हुआ है ना, इफ़ यू विल क्लिक ऑन मैक्सिमाइज़, तो विंडो बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा, जब आप वापस उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रीस्टोर डाउन का ऑप्शन मिलेगा। तो इफ़ यू विल क्लिक ऑन दैट रीस्टोर डाउन, तो वापस से उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज़ इट, अगर आप माइनस वाले साइन पे ओपन करेंगे तो ये सारा का सारा विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगा। आपके टास्क बार पे इसका नाम शो होगा केवल, है ना। इट विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से वो गायब हो जाएगा, टास्क बार में आ जाएगा, ओके। एंड इफ़ यू विल क्लिक ऑन क्लोज, तो आपको जो विंडो वो है वो क्लोज हो जाएगा, ओके। सो अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग द विंडो। मूविंग द विंडो मीन्स इट हैपन्स ना कि समटाइम वी ओपन सो मैनी विंडोज़, कभी कभी हम लोग म्यूज़िक भी खोल लेते हैं, पेंट भी खोल लेते हैं, है ना। वी कैन वर्डपैड भी ओपन कर लिया, बहुत सारे विंडोज़ ओपन कर लिए। इफ़ यू वांट टू मूव दोज विंडोज़, सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द मिडिल बटन, रीस्टोर बटन डाउन, ऑल विंडोज़ विल बिकम स्मॉलर इन साइज़। वो सारे विंडो क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, बिकॉज अगर बड़े होंगे सभी के सभी विंडो, तो हम एक टाइम पे एक ही विंडो देख सकते हैं केवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द मिडिल बटन ऑफ द विंडो, ठीक है। जब आप मिडिल बटन पे क्लिक करेंगे तो विंडो साइज विल बी स्मॉलर, ओके। एंड देन क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन
ऑन द टाइटल बार। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो विंडो का टाइटल बार होता है आप उस पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे टाइटल बार पे, एंड यू विल ड्रैग इट टू लेफ़्ट राइट वेर एवर यू वॉन्ट टू मूव इट। ओके, जहाँ भी आप माउस से उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपका विंडो मूव कर जाएगा। ओके, move the pointer over the desktop area and click it once. The title bar of the WordPad window turns gray. It means that it is not active, but you can read the item in the WordPad window. Now click once on the WordPad working area. The title bar turns blue. It means the WordPad window is active. So suppose अगर आप ने विंडो मूव कर दिया उसको लेफ़्ट राइट कहीं पर भी, और अगर आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर देते हो वापस से, तो क्या होता है, जितनी भी विंडो ओपन होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं। यू विल फाइंड द चेंज कलर ऑफ द टाइटल बार। जो टाइटल बार जो टॉप मोस्ट एरिया होता है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। यू कैन रीड वॉट एवर इज़ रिटन ऑन वर्डपैड, आप पढ़ सकते हैं, बट आपका जो माउस का पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो वहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो वर्डपैड पे। इफ़ यू वांट टू टाइप एनीथिंग ऑन वर्डपैड तो वापस से आपको वर्डपैड पर क्लिक करना होता है। ओके, so this is how we can do this. Last topic is shutting down the computer system. So how we can shut down it? So it's very easy. You should always shut down the system in a proper way. You will click on the start button, and then you will click on the shutdown option. Okay, click on the start button and then click on the shutdown option. Okay, so now wait for some time till the computer turns off automatically, then switch off the monitor button. After that switch off the UPS button and main power button. आपको CPU को वापस से बंद नहीं करना होता है, CPU ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बाकी आपको मॉनिटर का पावर बटन ऑफ करना रहेगा, उसके बाद आपको UPS का बटन ऑफ करना रहेगा, एंड देन यू विल स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स. Okay, in the Zoom class we will do the practical of this chapter. ठीक है, practically I will show you. Okay, so revise the chapter and take care of yourselves. That's all for today. Bye bye.